Okay, so today we have another 1200 rated problem, substring and subsequence. So in this question, basically we are given two strings A and B, both are consisting of lowercase Latin letters, and they have actually defined what a subsequence is and what actually a substring is. Our task is to calculate the minimum possible length of the string that contains A as a substring and B as a subsequence. So the question is fairly simple. You are given two strings. For example, in this question you have ABA and CB. You have to give the length. You don't have to give the string. You have to give the minimum possible length of the string that contains A as a substring and B as a subsequence. So for example, in this problem ABA CB, they made the string as this CABA. So if you look at CABA, it has CB as the subsequence and ABA as the substring over here. So you just have to return the length of the smallest possible string like that, and you don't have to actually return the string itself. Okay, so that's the problem, and let's first look at some very obvious observations and then we'll move to what the optimal solution for this is, and also take a look at the constraints ones because they are very less, like less than equal to 100 both the lengths. So that will also help you get to a brute force solution if you want. Okay, so now let's move to the whiteboard for the explanation part. So I have selected two strings A and B over here. So in this case, same A is the substring, like which they want to keep as the substring, and this one is the subsequence. Like this example is a bit more easy to explain, like what is happening in the question. But before that, let's look at some very obvious observations. Okay, so you have two strings A and B, right? You have to keep A as the substring and substring, and this as the subsequence. This as the subsequence. Okay, so what's the minimum possible length? Like what's the minimum possible? It is actually the length of A itself. Why I'm saying this? Because let's just say your A is A, B, A, C, D. Okay, this is your A, and as we know, we want to keep A as the substring. Okay, A as the substring and B as the subsequence. And let's say your B is again something like BD. So if you see, this BD is already a subsequence in the first substring itself. And as you know, we have to keep this whole thing as a substring, so you can simply return 1 2 3 4 5 as the length, because that's the minimum possible length of the string given this A and B. ठीक है, दिस इज़ वन ऑब्जर्वेशन, दैट इज़ ए का जो लेंथ है वो तो रहना ही पड़ेगा, लाइक दैट हैज़ टू स्टे. यू कैन ऐड सम मोर कैरेक्टर्स जस्ट टू satisfy B because it has a requirement of subsequence. Now this was the most basic thing. Now let's get to this example, which is this one that I have written over here. Let's see what is happening in this problem. ठीक है, so again this is the substring, तो ये पूरा का पूरा रहेगा, right? So 1 2 3 4 8 10, this is a 10 character string. ठीक है, 10 कैरेक्टर. सो अपना मिनिमम आंसर तो यहाँ पे 10 हो गया. अभी हमें ये जो सब सीक्वेंस है ना, इसके अकरेंसेस एंड एज यू नो सब सीक्वेंस भी ऑर्डर में आनी चाहिए. अगर मैंने यहाँ पे ई डी डाला है तो जस्ट बिकॉज यहाँ पे डी है, लाइक बेसिक सब सीक्वेंस डेफिनेशन, राइट? ई डी चाहिए तो ई के बाद ही डी आना चाहिए. दैट इज़ वन थिंग. सो अभी अगर यहाँ पे देखें ना, हमें ये पूरा सेटिस्फाई करना है इसी ऑर्डर में ऊपर वाला जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा उसमें भी जो हमारा फाइनल आंसर होगा, जो भी हम स्ट्रिंग डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें उसी ऑर्डर में चीज़ें आनी चाहिए. सो मैंने ट्राई किया, मैंने अपना पहले ना पॉइंटर ई पे रखा कि मैं ट्राई करता हूँ कि इफ़ आई कीप माई पॉइंटर एट ई, आई विल ट्राई टू स्टार्ट इंक्लूडिंग नंबर्स फ्रॉम ई इटसेल्फ. सो माई इनिशियल पॉइंटर वॉज एट ई. सो जब मैंने ई से ट्राई किया, मुझे यहाँ पे ई तो मिल गया, लाइक देयर वॉज 1 ई, बट ई के बाद देर इज़ नो डी, लाइक मुझे बस एक मैच हुआ वहाँ पे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, लाइक तुम्हें थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा. जब मैंने ई से मैच करने का ट्राई किया था ना, जब मैंने अपना पॉइंटर ई पे रखा था, तो मैं एक एक करके मैच करने का ट्राई कर रहा था. पहले ए पे था, ए ई से मैच नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, डी नहीं हुआ, एच नहीं हुआ, ई हुआ, बट एक ही मैच हुआ. फिर उसके बाद मुझे डी चाहिए था. यहाँ पे मुझे सब सीक्वेंस को इन ऑर्डर ही सेटिस्फाई कराना है, राइट? सो डी मुझे नहीं मिला, लाइक एफ जी आई जे आ गया, पूरा पॉइंटर ख़त्म हो गया. तो मेरे को ई का, अगर मैं ई से सेटिस्फाई करने का ट्राई करूँ तो मुझे नहीं मिल रहा है. तो यहाँ पे मुझे एक ही मैचिंग मिला है. नाउ आई टेल यू ये वाला जो मैचिंग मिला है इसका क्या इंपॉर्टेंस है. फिर मैंने डी से स्टार्ट किया. सो अभी इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डी नाउ. ठीक है, नाउ इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम डी, सो पहला मैच तुम्हें मिलेगा यहाँ पे, फिर तुम्हें एच भी मिल जाएगा and D H मिल गया. then you'll also get I, you'll also get J. so what I'm doing over here is मैंने अपना दोनों पॉइंटर पहले मैंने D पे रखा है, मैंने यहाँ पे A C स्टार्ट किया कि मुझे जैसे ही पहला मैच मिलेगा आई विल इंक्रीमेंट माई पॉइंटर. सो मुझे नहीं मिला, जब तक मैं यहाँ पहुँचा मुझे मिल गया. D एंड H मैच हो गया, H एंड H भी मैच हो गया, फिर I भी यहाँ जाके इवेंचुअली मैच हो गया, J भी यहाँ जाके इवेंचुअली मैच हो गया.
सो जब मेरा पॉइंटर डी था तो मैं इतना चीज़ को सेटिस्फाई कर पाया था, डी एच आई जे, दैट इज़ 4 लेंथ का ऑर्डर मैं सेटिस्फाई कर पाया। उसके बाद बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग इज़, मैं हर स्टार्टिंग पॉइंट से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ऊपर वाले में इस स्टार्टिंग पॉइंट से कितने सबसीक्वेंस ढूंढ सकता हूँ। सो व्हेन डी एच आई जे का केस आया था तो मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 ऑर्डर मैच हो गया था, ठीक है। सो यहाँ पे 4 आ गया। सिमिलरली भी एच का इतना नीड नहीं है, हमें समझ आ गया एच आई जे आएगा, सो एच का 3 आएगा। अभी तुम्हें समझ आया राइट एच का 3 कैसा आया, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन वंस, फिर बाकी का थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अगेन जब मैंने एच पे अपना लाइक एच पे मैंने अपना पॉइंटर डाला था तो ये एच इसके साथ मैच हुआ। फिर एच के बाद मुझे आई भी सीक्वेंस में मिल गया, जे भी मुझे मिल गया, तो यहाँ पे अगेन 3 आया। सिमिलरली आई का भी तुम्हें समझ आ गया होगा, 2 आएगा, जे का 1 आएगा। सो ये मुझे मिला मैचिंग राइट। ये हमारा कहाँ तक कवर हो गया, हमने लाइक अभी सी बचा, अभी सी से स्टार्ट करते हैं। तो जब मेरा पॉइंटर सी पे था तो मैंने वापस स्टार्टिंग से मैच कराना ट्राई किया, तो सी यहाँ पे मैच हो गया, डी यहाँ पे मैच हो गया, ई यहाँ पे मैच हो गया। लाइक मुझे ऑर्डर पे मैच कराना है, अगर मुझे ई नहीं मिलता तो मैं वहीं मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, बट ये ऑर्डर में सब सेटिस्फाई होने चाहिए। अगेन यहाँ मुझे एफ़ मिल गया, मुझे जी भी मिल गया। सो 1 2 3 4 5 सी से अगर मैं स्टार्ट करूँ ना तो ये पूरा चीज़ मैं इतना एरिया सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ। सिमिलरली अभी तुम्हें समझ आ गया होगा कि डी का 4 क्यों है, क्योंकि सी को इग्नोर कर दो तुम्हें समझ आ जाएगा डी का 4 क्यों है। यहाँ पे डी ई एफ जी मैच हुआ था तो 4 अगेन 3 2 1 एंड यहाँ पे ए है तो ए का बस एक ही मैच मिलेगा उसको वहाँ पे, तो अगेन वहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, हमारे ये वाला पूरा चीज़ रेडी हो गया राइट। अभी ये तुम्हें समझ आ गया राइट, मैंने हर नीचे वाला जो सब सीक्वेंस है ना वहाँ से स्टार्ट किया कि मैं इतना एरिया सेटिस्फाई करता हूँ, देखते हैं कितना सबस्ट्रिंग सब सीक्वेंस में मैच होता है, उसी अकॉर्डिंग आई विल डू माई कंप्यूटेशन। अभी कंप्यूटेशन क्या करना है, सबसे एक बार ट्राई करते डी से। तो जब मेरा डी का अभी ये जो बाकी वैल्यूज़ हैं इनको हटा देता है, आई टेल यू क्यों हमें इसमें से मैक्सिमम वाले का ही नीड है, पहले वो देखते हैं ठीक है। अभी थोड़े ये सब हटा देते हैं क्योंकि ये हमारे आंसर में कंट्रीब्यूट करेंगे नहीं, तो मैं कैलकुलेट सब करना है बट आंसर आएगा इनसे, ये जो मैंने रिमेनिंग वैल्यूज़ रखे। तो जब डी का वैल्यू 4 आया था उसका मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट यहाँ से लेके डी एच आई जे यहाँ के डी एच आई जे से मैच हुआ था, तो मतलब इतना पार्ट को तो मुझे ऐड नहीं करना है क्योंकि ये मुझे ऑलरेडी ए वाले सबस्ट्रिंग में मिला, ए वाला जो रिक्वायरमेंट था उसमें मिल चुका है। बचे कितने एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स बचे विच वुड बी एडेड, क्योंकि डी एच आई जे के सीक्वेंस अगर तुम देखोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है, डी से पहले ई नहीं है। तो डी एच आई जे अगर तुमने कंसिडर किया ये कि डी एच आई जे ऊपर वाले के साथ मैच हुआ है, तो ये जो बाकी कैरेक्टर्स है ये तुम्हें एक्सटर्नली ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं डी एच आई जे को रखता हूँ तो मेरे को आंसर में कितना ऐड करना पड़ेगा, ए का जितना लेंथ है वो तो आएगा ही आएगा पूरा 10 प्लस बी का पूरा लेंथ ऐड करना पड़ेगा, बी का भी लेंथ कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 माइनस ये जो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी उसमें सबस्ट्रिंग है विच इज़ 4, सो 10 + 11 4 इज़ 17। दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर। ये तुम्हें हर उसके लिए कैलकुलेट करना है, जो मैंने इरेज कर दिया ना उनके लिए भी कैलकुलेट करना है, इवेंचुअली यू विल गेट द मिनिमम आंसर। नाउ लेट्स ट्राई दिस फॉर सेम थिंग सी। अभी तुम इससे समझ गए होंगे कि 10 तो 10 ही रहेगा हमेशा, 11 तो हमेशा 11 रहेगा, बस चेंज होगी तो ये वाली वैल्यू 4 वाली वैल्यू, समझा राइट। तुम्हें ये वाला वैल्यू जब चेंज होगा, अभी सी के केस में यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि सी के केस में 5 क्यों आएगा, क्योंकि सी के केस में सी डी ई, एक मिनट ये रेज कर देता हूँ, सी के केस में वैल्यू हमारे पास बेटर आंसर क्यों आएगा, क्योंकि सी का वैल्यू जब 5 आया था उसका मतलब क्या, सी डी ई एफ जी ये पूरा मुझे मिल गया था राइट, सी डी ई एफ जी मुझे 5 वैल्यूज़ मिल गए थे हमारे उसमें। सो 10 + 11 मतलब इसका लेंथ दोनों को ऐड करना है, प्लस ये जो गार्बेज वैल्यू हमें ऑलरेडी ए में मिल गया था वापस उसको कंसिडर नहीं करना है। सो -5 विच विल गिव यू 16 एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इससे छोटा आंसर नहीं जा सकता। That's how you have to go about this problem. Like try satisfying from every possible starting index in the subsequence, क्योंकि subsequence को order में ही satisfy होना पड़ता है। Once तुम्हें maximum length वाला मिल गया, that is your final answer। बस तुम्हें यहाँ पे वो max से replace करना है। So यहाँ पे आएगा A का length, यहाँ पे आएगा B का length माइनस जो भी तुम्हें common चीज़ मिली है given you have tried from every index। Now if you look at the code for this, again same replication है, N and M को वहीं रखा। ये J क्या है, इफ़ यू सी आई एम इटरेटिंग ओवर M का इंडेक्स एंड M इज़ B का लेंथ, सो J = 0, J <m। आंसर मैंने मैक्स से इनिशियलाइज कर दिया।
फिर मैं जे से स्टार्ट करके वापस आई से हमेशा चेक करता हूँ कि जे लाइक ऑब्वियसली करंट जे शुड बी लेस देन एम। मैंने चेक किया जब तक मेरा मैच होते जा रहा है, यहाँ पे भी हम वही कर रहे थे राइट, यहाँ पे भी हम वही कर रहे थे, पहले सी मैच हुआ, फिर जब जब मैच हो रहा है आई एम इंक्रीजिंग माई लेंथ और मैं अपना पॉइंटर भी बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैच हो रहा है मैं हमेशा अपना पॉइंटर इंक्रीज़ कर रहा हूँ एंड करंट जे को भी इंक्रीज़ करते जा रहा हूँ। फिर इफ़ यू सी वही जो मैंने अभी तुम्हें नीचे इक्वेशन लिखा था कि देयर इज़ ऑलवेज ए का लेंथ बी का लेंथ एंड माइनस द लेंथ एंड उसमें से तुम्हें मिनिमम आंसर कैलकुलेट करना है। सो इतना ही पार्ट था कोर वाला। सो अ सिंपल प्रॉब्लम जस्ट अ स्मॉल ऑब्जर्वेशन। सो हाँ दैट्स इट। इसमें कुछ डाउट हो तो डू लेट मी नो। थैंक यू।